हेलो एवरीवन। सो अज का जोड़ा अपना वीडियो है वो है हाउ टू मेक सेंटेंस इन आइल्स राइटिंग टास्क 2। As some of my students were messaging me on Instagram and on Messenger, and they were saying me that we are having a lot of problem in making sentence in writing task 2. So I'll try my level best to make you understand that how you can write or jot down your writing task 2. First of all, I have written two instructions on the board. You can look it carefully and listen carefully so that you can write in a proper way, in an adequate way, so that you can get 7 or 7 plus band scores in writing task 2. Not only I'll make you understand in writing task 2, even I'll upload some videos how you can make sentence in writing task 1 also. So as I have written on the board, there are two instructions and I'll make you understand. I'll request you can see this video again and again and use that sentences in different topics. So first instruction which I have written on the board is, it is mandatory to clear about tense. So to make you understand, as usual, I'll speak in Punjabi. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟੈਂਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਯੂਜ਼, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪੈਸਿਵ ਫੋਰਮ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ। ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਨ ਟੈਂਸ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਅਪਲੋਡਡ। ਮੈਂ ਪੈਸਿਵ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਿਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਸ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲ ਮੇਕ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਜਾ, ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਸਕ 2 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਕ ਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਆਈ, ਵੀ, ਯੂ, ਦੇ। ਦੇਖੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਸ਼ੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਈ ਕੋਈ ਵਾਕ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗॉट इट। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ ਭਾਵ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੀ ਪਲੇਜ਼। ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਐਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਕ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਡੂ ਨੋਟ
ਤੇ ਡਸ ਨੋਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, verb ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਡਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਸ, ਤੇ verb ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਡੂ। ਗॉट इट? देखो सब तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं थोड़ा समझा चुकी हूँ। ਹੁਣ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, कितने खत्म हो रहा है? दे ਹਨ ਤੇ, राइट? तो सब तो पहले ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ सब्जेक्ट, फिर वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ देखना है कि वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म में एस लगना कि नहीं। जे ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ है सब्जेक्ट ਤਾਂ ਅਸੀਂ एस ਲਗਾਵਾਂਗੇ वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म ਨਾਲ, अदरवाइज जे आई वी यू ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऑब्जेक्ट देखो ध्यान ਨਾਲ, बच्चे चिल्ड्रन एक तो ज़्यादा है ना। तो इस तो बाद जो तुम सब तो पहला सब्जेक्ट लगा लेंगे ना, सब्जेक्ट लगाने तो बाद पिछे सेंटेंस के वाक के पिछे आना है। हुण देखो खान की इंग्लिश लगानी है, की लगाती सी ईट। ये SCIS क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चिल्ड्रन ज़्यादा है। मैं पहले ही दसिया जो सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो एस लगेगा या ES, नहीं तो नहीं लगना, राइट? हुण देखो सब तो पहले असीं सब्जेक्ट लगाया, उस तो बाद खान की इंग्लिश लगाई, उस तो बाद असीं की लगाई फास्ट फूड। हमेशा सेंटेंस किवें बनदा है? पहला सब्जेक्ट लगाओ, फिर पिछे पहचान देखो, फिर ओदी इंग्लिश, फिर ओदी इंग्लिश, इत्थे आके खत्म। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस किवें बनदा है। एक होर एग्जांपल है, एडवर्टाइजमेंट्स लोकां नूं प्रभावित करदियां हन, पिछे की आगा दा है दी है दे हन। देखो इसे रूल नूं फॉलो करना है। सब तो पहला असीं की लगाया सब्जेक्ट, एडवर्टाइजमेंट लगा ले, पिछे आ जाओ प्रभावित करन दी इंग्लिश की होंदी है इन्फ्लुएंस। देखो एडवर्टाइजमेंट एक तो ज़्यादा है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं हैगा। यह जे सिंगुलर हुंदा, एक ऐड हुंदी तां असीं इन्फ्लुएंस दे नाल एस लगा देंगे, राइट? सब तो पहले एडवर्टाइजमेंट लगाया, फिर प्रभावित करन दी इंग्लिश, फिर की लगाता लोकां दी। बस बन गया सेंटेंस। पहला यह लगाओ, फिर पिछे आ जाओ बिल्कुल वाक दे ओदे हिसाब नाल, इत्थे वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर इहदी इंग्लिश, फिर इहदी, दैट्स ऑल, खत्म। एडवर्टाइजमेंट्स इन्फ्लुएंस पीपल, राइट? तो यही सीगियां अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट दियां एग्जांपल्स। हुण जे तुहानूं यूज़ करना पै जे इहदा पैसिव फॉर्म, तो वो किवें करना यूज़, उहदे लई मैं दसदी हूँ। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट दा पैसिव फॉर्म किवें बनदा है। इस पैसिव फॉर्म बनाने लई तुसीं याद रखना है, एक हुंदा एक्टिव, एक हुंदा पैसिव। ऑलरेडी मैं वीडियोज़ अपलोड कीतियां होईयां ने। मैं फिर कह रही कि दोबारा तुसीं वीडियोज़ नूं देखना ताकि तुहानूं रूल्स एंड रेगुलेशनस जिहड़े हैं वो याद हो सकन, राइट? एक्टिव की होंदा है जिहदे च सब्जेक्ट मौजूद होंदा है, ते पैसिव की होंदा है जिहदे च सब्जेक्ट इनडायरैक्ट वे नाल मौजूद होंदा है। कहण दा भाव यह है, मैं इत्थे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। जिवें देखो सब तो पहले रूल समझो की है, पैसिव किवें बनूगा प्रेजेंट इंडेफिनिट दा। सब तो पहले सब्जेक्ट, फिर असीं सब्जेक्ट दे नाल लगावांगे या तां इज या एम या आर। याद रखना है जिहड़ा इज है वो 3 सब्जेक्ट्स नाल लगूगा, ही शी इट दे नाल। जिहड़ा आई है वो किहदे नाल, किहड़े सब्जेक्ट नाल लगूगा? आई दे नाल। और आर लगूगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के नाल, जिवें कि वी, यू ते दे दे नाल। ओके, कोई भी पैसिव बनाना तुसीं, वैसे 12 टेंसेस ने टाइप्स मिला के, जिहदे विचों 8 टेंस है जिन्हां दा एक्टिव तो पैसिव बनदा, 4 दा नहीं बनदा। और जिन्ने भी पैसिव फॉर्म च आपां किसी भी टेंस नूं कन्वर्ट करांगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है और एंड ते ऑब्जेक्ट, लेकिन इत्थे कन्वर्जन लगदी है। मैं तुहानूं एग्जाम्पल देके समझानी है। यह है पैसिव, बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, इस मतलब सॉरी एक्टिव है बच्चे, ये की है चिल्ड्रन, बच्चे मौजूद है। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब नाल पहले असीं सब्जेक्ट लगाया बच्चे, हुण खाण दी इंग्लिश पिछे लगा लो ईट, एक तो ज़्यादा है बच्चे, मैं पहला भी एग्जाम्पल दस चुकी है, एस नहीं लगना। उस तो बाद फास्ट फूड, चिल्ड्रन ईट फास्ट फूड। हुण इस दा पैसिव है, देखो फास्ट फूड बच्चों द्वारा खाधा जाता है। याद रखियो इस वर्ड जिहड़ा है द्वारा जरूर हुंदा है, कोई काम किसी द्वारा किया जा रहा है वो पैसिव है। तो देखो किवें बनूगा, इहनूं देखना तुसीं। सब तो पहला असीं लवांगे फास्ट फूड, लिखांगे असीं, लिख लिया सब्जेक्ट असीं लिख लिया। हुण फास्ट फूड ना देखो तुसीं इज लगाना है कि एम के आर, सिंगुलर है तो की लगाया असीं इज। वर्ब भी बना दो थर्ड फॉर्म, इत्थे फॉर्म जिहड़ी है उहनूं किहड़ी कर दो वर्ब दी थर्ड फॉर्म ईटर। उस तो बाद असीं लगाना है बाय, इत्थे मैं ऐड करना भुल गई, तुसीं लगा लेना है वर्ब दी थर्ड फॉर्म तो बाद बाय। और उस तो बाद असीं कन्वर्जन लगावांगे। कन्वर्जन मीनस चिल्ड्रन है तो बाय इत्थे चिल्ड्रन आऊगा। वैसे मैं तुहानूं कन्वर्जन दस भी दिंदी है, जे कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है एक्टिव च ही तो कन्वर्ट करते समय हो जाएगा हिम। जे कोई शी तो स्टार्ट हो रहा है तो कन्वर्ट करते समय हो जाएगा हर। आई द मीच, यू नो चेंज, यू ही रहेगा। दे कन्वर्ट हो जाएगा दैम दे विच,
इट भी कोई चेंज नहीं है, इट का भी इट च रहेगा, ही शी इट आई वी का यूज हो जाएगा अस। तो चिल्ड्रन है जोड़ा ये चिल्ड्रन च कन्वर्ट होएगा। ध्यान नाल मैं पैसिव दी वीडियोस बार बार तुहानूं दस रही हैं, ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड। फिर भी जो तुहानूं किसी को कोई दिक्कत परेशानी आ रही होवे तो तुसीं कमेंट सैक्शन च मैनूं पूछ सकते हो। सिर्फ एक ध्यान रखना, देखो ये एक्टिव है क्योंकि इस बच्चे मौजूद है। यही की है फास्ट फूड बच्चे द्वारा किसी द्वारा कोई चीज़ हो रही है वो पैसिव है। तो इहनूं किवें बनाना, वर्ब तो बाद वाला सारा चकना हुंदा है। तुहानूं वर्ब भी पता होना चाहिए, वर्ब तो बाद वाला सी सारा चक्या वो सब्जैक्ट है साढ़े को, और उस तो बाद असीं इज या एम या आर का यूज़ करना है। जो भी वर्ब है थर्ड फॉर्म कर दो, थर्ड फॉर्म लगाने तो बाद नाल दी नाल बाय तो बाद जिहड़ा इत्थे रह जांदा है वो कन्वर्जन लगा देना। तो की बन गया, फास्ट फूड इज ईटन बाय चिल्ड्रन, राइट। हुण फ्यूचर इंडेफिनिट का भी यूज़ होंदा है टास्क 2 दे विच। जिवें देखो सब तो पहले फ्यूचर इंडेफिनिट होंदा कि जिहड़े वाक पता होंदे गा गे गीते, फ्यूचर मतलब आउण वाला कल। जिवें तुसीं लैक्चर लगाओगे, मैं तुहानूं टीच करूँगी, ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ रोटी खावांगे, गांगे गीते खत्म होना चाहिए। और इस सब्जैक्ट तो बाद की ला है या विल या शैल ते वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। याद रखना है जिहड़ा विल है शैल है, अजकल तुसीं सारे सब्जैक्ट्स नाल विल लगा सकते हो, बट आए ते वी नाल तुसीं शैल दा यूज़ कर सकते हो। जिहड़े बाकी सब्जैक्ट रह गए ही शी इट यू ते दे, इन्हां नाल तुसीं लगा सकते हो विल। गॉट इट। देखो मैं ओपीनियन डिस्कस करांगा या करांगी, किवें बनदी है लाइन। देखो पहला रूल की है, पहला सब्जैक्ट, फिर सब्जैक्ट के हिसाब नाल विल या शैल, नाल दी नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, उस तो बाद ऑब्जेक्ट। देखो सब तो पहला मैं किहदी लगा रही है, इंग्लिश सब्जैक्ट आई। मैं तुहानूं कि लाइन किवें बनदी है, कोई भी तुसीं गल कर रहे हो, किसी भी फॉर्म च गल कर रहे हो, टेंस के हिसाब नाल तुसीं चलना है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाना है। आई लगा के हुण देखो डिस्कस करन दी इंग्लिश की हुंदी है, सॉरी आई तो बाद असीं की लगावांगे, मैं इत्थे लगाया आई शैल, हेल्पिंग वर्ब लगाता। और डिस्कस करने की इंग्लिश की होती है डिस्कस, ठीक है। ओपीनियन जिहड़ा रह गया, आई शैल डिस्कस ओपीनियन। आप ये राइटिंग टास्क को डिस्कस वाला कोई ओपीनियन वाला टॉपिक है, डिस्कस बोथ व्यूज आप एंड ते लिखते होंगे हैं कि आई विल या आई शैल डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स इन इंपेंडिंग पैराग्राफ्स। तो ये भी यूज़ उत्ते हुंदा है। हुण मैं एक स्टैंजा लिख रही है और उस तुसीं रैकगनाइज खुद कर लेना कि किहड़ी लाइन में पैसिव फॉर्म च लिखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट दी और किहड़ी में फ्यूचर इंडेफिनिट। पर सेंटेंस फॉर्मेशन नूं तुसीं सुधारन दे लई, रिफॉर्म करन दे लई कोशिश करो पहले 10-11 दिन तुसीं उसनूं पहला पंजाबी या हिंदी च पहला लिख लो, उस तो बाद ओहदी इंग्लिश कन्वर्ट करके टेंस के हिसाब नाल तुसीं इसनूं लिखो, राइट। देखो एग्जाम्पल मैं टास्क 2 की इत्थे लै रही हाँ। ऑलरेडी मैं थोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, पैसिव फॉर्म ते फ्यूचर इंडेफिनिट बारे दस चुकी हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं लेती है। सब तो पहला टॉपिक देखो की है, टॉपिक है कि सम थिंक दैट रॉबर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमनस फ्यूचर डेवलपमेंट। कुछ लोग ये सोचते कि रॉबर्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमनस की फ्यूचर डेवलपमेंट दे विच, वाइल अदर्स थिंक, होर लोग की सोचते ने दे आर डेंजरस, वो खतरनाक ने रॉबर्ट्स, एंड हैव नेगेटिव इफैक्ट्स ऑन सोसाइटी, तो उन्होंने नेगेटिव प्रभाव ने सोसाइटी के उपर। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओन ओपीनियन। दोनों व्यूज़ असी डिस्कस करने हैं, यानी कि ये ओपीनियन वाला टॉपिक है। इत्थे असी दोनों ही आइडियाज़, दोनों व्यूज़ नूं डिस्कस करना है। तो देखो कुछ लोग कहते कि जोड़े रॉबर्ट्स है फ्यूचर डेवलपमेंट वास्ते, ह्यूमनस दे फ्यूचर डेवलपमेंट वास्ते रॉबर्ट्स बहुत ज़रूरी ने। होर लोग की सोचते हैं कि यह खतरनाक है और इन्हों का नेगेटिव जोड़ा प्रभाव है सोसाइटी के उपर। दोनों व्यूज़ तुसीं डिस्कस करने, लेकिन फॉर एग्जाम्पल देने लई मैं तुहानूं समझाया। देखो एग्जाम्पल के उपर मैं लिखा कि रॉबर्ट्स ह्यूमन द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। ये कोई मैं इंट्रो नहीं लिख रही या कुछ भी नहीं है, बड़े ध्यान नाल तुसीं सुनना है, समझना है, राइट। मैं सिर्फ एक लाइन ली है कि देखो सब्जैक्ट बारे भी मैं दस चुकी हाँ। सब्जैक्ट इत्थे की है रॉबर्ट्स, फिर हैल्पिंग वर्ब तुसीं यूज़ करना है, दैन वर्ब, हैल्पिंग वर्ब के हिसाब नाल वर्ब लगेगा। हुण इहदे लई तुहानूं टेंस क्लीयर होने चाहिए हैं। उस तो बाद जो कुछ बाकी रह जाता है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जैक्ट, तुसीं ऑब्जैक्ट लगाना है। देखो एग्जाम्पल, रॉबर्ट्स ह्यूमन द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं, ये भी मैं तुहानूं दस चुकी हाँ। कोई चीज़ किसी द्वारा की गई होवे, उहदे च जिहड़ा सब्जैक्ट है वो डायरैक्टली मौजूद ना होवे, वो पैसिव फॉर्म बन जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव किवें बनता है, इज़, एम, आर नाल थर्ड फॉर्म लगा के। सब तो पहला मैं सब्जैक्ट लगाया रॉबर्ट्स, हैल्पिंग वर्ब के नीचे देखो मैं की लिखिया आर। हुण जिवें मैं पहला दस्सिया सी सब्जैक्ट तो बाद बिल्कुल पिछे तुसीं आना होना सेंटेंस दे
डिज़ाइन है, डिज़ाइन की थर्ड फॉर्म बनाती डिज़ाइंड, फिर दोबारा दी इंग्लिश लगाई है बाय, उस तो बाद ह्यूमन बींग्स। रोबोट्स आर डिज़ाइंड बाय ह्यूमन बींग्स। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੀਨਸ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਡਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਟਰੋ ਦੇਖੋ, ਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਰੈਫਿਊਟੇਬਲੀ ਟਰੂ ਦੈਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਲਾਈਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲਿੰਕਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਰੋਬੋਟਸ ਆਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਮੀਨਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਬਾਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਪੈਸਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਮ ਸੇਜ਼ ਰੋਬੋਟਸ ਪਲੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਸ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਰੋਬੋਟਸ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ। ਸਟਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਮ, ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਮ ਸੇਜ਼, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਬੋਟਸ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨਕਾਈਂਡ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਊਐਵਰ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕਰ ਲਗਾਇਆ ਲੇਕਿਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਰਸ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ others do not find favor with this phenomena, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। do not does not ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ। others ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਤਾਂ do not ਲੱਗੂਗਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ does not ਲੱਗੂਗਾ। others do not find favor with this phenomena, ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬੋਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਮੀਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਗਿਵ ਯੂਰ ਓਨ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਸ਼ ਆਊਟ, ਹੈਸ਼ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਡਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗॉट ਇਟ। ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਸ਼ ਆਊਟ ਬੋਥ ਦੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਇਨ ਇੰਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਫੋਰ ਰੀਚਿੰਗ ਔਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਟੌਪਿਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ 8-9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਟੌਪਿਕ एग्जाम आ जाता है तो यू कैन जॉट डाउन योर ओन आइडियाज़। हुण आइडियाज़ कितों आएंगे, देयर इज़ नो मैजिक स्टिक, राइट। उहदे लई तुहानूं प्रैक्टिस ही करनी पऊगी। बहुत सारिया वीडियोज़ ने यूट्यूब पे कि आप आइडियाज़ को ऐसे इलैबोरेट करो, ऐसे करो, वैसे करो। सो मैं पर्सनल अपना ओपीनियन यही दिंदी हां अपने एक्सपीरियंस तो कि तुसीं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुसीं अपनी राइटिंग जिहड़ी है वो टॉपिक्स नैट के उपर बहुत पए हुए हैं, या कोशिश करो तुसी मक्कड़ की जिहड़ी बुक है उन्होंने फॉलो कर लो। ये मैं पर्टिकुलर नहीं दस रही, होर भी बहुत सारिया बुक्स ने। तो तुसी वो टॉपिक नूं हर रोज़ प्रैक्टिस करो, अपने ट्यूटर तो चैक करवाओ, उहदे च ग्रामेटिकली एरर्स की है, सेंटेंस किवें कंपलैक्स करना है, किवें कंपाउंड करना है। कंपलैक्स सेंटेंसिस की भी मैं वीडियो बनाई हुई है, तुसी वो भी देख सकते हो। बच्चों को बहुत होवा लगता है कि कंपलैक्स सेंटेंस किवें बनाना, दैट इज़ वेरी ईजी वे। तो तुसी राइटिंग नूं बहुत टफ मान के ना चलो, तुहानूं इहदे लई ग्रामर तो ये टेंस क्लीयर होने बहुत जरूरी ने। सो मैं होप करती हूँ कि थोड़ा ये सारा वीडियो समझ आया होगा। फिर भी थोड़ी कोई क्वेरी है तो कमेंट सैक्शन में जाके अपलोड कर सकते हो कमेंट्स। और जो तुम चाहते हो कि तुम अपनी राइटिंग भी चैक करवाना चाहते हो, एज लॉकडाउन हजे भी चल रहा है,
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਪਲਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਰਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। सो कुछ स्टूडेंट्स मेरे हैं ऑफिशियल नंबर पर या इंस्टा पर मैंने मैसेज कर रहे हैं कि मैम सानू सैंपल लिए कुछ तुसी टॉपिक्स भी पाओ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहा ताकि थोड़े डाउट्स जोड़े हैं क्लीयर होंगे रहन। सो विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू।